तारीख है 12 फरवरी 2022 और समय हो गया है 09:34 AM। I don't care. I don't care. My concern is only with the Maryam Nawaz Sharif is a personal and individual. I will take care only yours. Yours means about yourself and myself. I don't have any care for your Pakistan love. I don't have any care about your humanity. I don't have any care about your parents and your belongings. If they are alive, well, I'll try to take care of them, but not the citizens of Pakistan. Why should I? You are my wife only. That's it. And be a good wife. I don't want to interrupt any kind of your political life. But if anyone try to harm you, then I'll use my power. But I will not ask you to be in politics or not. It's up to you. It's your decision. But if you bring any kind of Shifaris type of thing that I'll spare the Pakistan, it's never going to happen. It's open talk. Open talk. Now you're an Indian citizen. You don't have to behave like an stupid. Simple. मेरे से कहाँ भिड़ पाएंगे मरियम, क्या बात कर रहे हो आप? सवाल ही नहीं उठता। कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप? सिंपल सी बात है, पूरा नीट सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है मैडम। शर्त लगाए थे कुछ ऐसा तो करके दिखाओ। मैंने ऐसा क्या बात कर दी मैडम? यहाँ तो अभी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर्स यूज ही नहीं करी है। ये तो मैं अपना ट्विटर हैंडल @हितेश से लिख रहा हूँ मस्त और क्या JSR सिक्योरिटीज। बात खत्म है। इफ यू वांट टू एंजॉय माय रिजीम यू कैन एंजॉय, इफ यू डोंट आई एम नॉट पुशिंग यू। बी देयर वेयर यू फील हैप्पी। Foundation is never a life. Why should I force you to be in my foundation? Feel free. Give some time to yourself. Plan what you want. According to my life is a very simple life. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लग्जरी जब कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ ना अभी कुछ समय तक। अब तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, अब ये करेंगे क्या? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो खुक्कल बैंड नहीं होने वाली है? हम तो सबको रगड़ देंगे दबा के। इट्स अप टू यू। Best life is a peaceful life. Win your life. Win your family. If just to irritate me, your SPGs and others are saying that your plan is something different, it's up to you. हर बार मैं कीचड़ में उतर के हीरा नहीं उठाने वाला। एक टाइम होता है, समझ में आई? जरूरत का समय होता है, जरूरत के हिसाब से इंसान चलता है। जरूरत होगी तो ठीक है उठाऊंगा, नहीं होगी तो छोड़ना, पड़े रहने दे, हीरा किसी और के काम आ जाएगा। मेरे हिसाब से सहस्त्र दल कमल ये है, आपके हिसाब से ये, आप समझो। मैं नहीं कर रहा बहस, साफ सीधी बात है। मेरा पैसा मेरा था, है और रहेगा। वर्ल्ड में हम आराम से JSR सिक्योरिटीज बनाई हमने बड़े सोच समझ के, बड़े सोच समझ के। दिस इज आवर वर्ल्ड। बात खत्म है। देखो यार, हम आपका पैसा तो नहीं लूट रहे, हम अपना पैसा बटोर रहे हैं ना। बात खत्म है, हाथ हटाओ। रेजिस्टेंस दोगे तो फिर देख लो, पर ठीक बात नहीं होगी। जो पैसा हमारा है हम अपना पैसा लेके जा रहे हैं, आप जो आपका पैसा आप अपना साइड रख लो। क्या समझाएं मैं ऐसे लोगों को? When I was awarding Pakistan government a peaceful time and a peaceful regime, and you all should have to enjoy it, na? But again and again you are provoking it in the name of fake nationalism.
Now, what should I do? I would like to enjoy my family life with the Mariam Nawaz Sharif. I would like to enjoy my personal life with my beautiful wives, my beautiful friends. That's it. If you bring something in front of me just because of money, you need to help someone, then you don't have to ask me. I will never ask you why you donated 1 crore rupees or 100 crore rupees, but that should go to needies, na? So help will come out only 1 crore, 5 crore. I will never ask. But if you ask me to save a nationalism of Pakistan, sorry, man, it's not your jurisdiction. It never comes in a jurisdiction of a wife. Simple. If you ask me, you want to be in a social sector, you want to help us, so man, is it? Please carry on. This is our real duties. I will never stop your hands. I will never ask you to do. Don't help anyone. I will ask you to definitely go and help them. But if you go to ask to help them to save their nationalism and the citizenship, extremely sorry, ma'am. ऐसी रिश्तेदारी नहीं पालता. साफ सीधी सी बात है. My relatives, my relations, I will definitely going to enjoy. I'm not a my RSS mindset. साफ सीधी बात है. I know only my blood. Then my friends and my friends, if they are working sincerely, so I will never allow anyone to touch them. तो बहुत मजा आ रहा है भाई. पहले पैसा कागज पे लिखना शुरू किया, अब उसकी हकीकत आ रही है सामने. अंदाजन 3 वर्ष तो लगेंगे सही से वॉल्ट तैयार करके सारा पैसा लगाने में. अब ये श्री राम मंदिर के बारे में कह रहे हैं, तो ये कह रहे कि कौन का बात करेगा 10,000 टन गोल्ड के लिए मेरे से? तुम करोगे? बना लो अपने आप. मान तो उठा लिया श्री राम मंदिर, हम तो बनाएंगे, जिसमें दम हो रोक लो हमारे को. पैसा है ना, मोदी अपनी पावर और पैसा दिखा रहा, दिखा ले, आजा आजा, क्या हो गया तेरे को? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो? अच्छा, पता नहीं था मुझे. अच्छा जी. मेरे को यार फिलहाल तो JSR सिक्योरिटीज का कोई मूड है नहीं किसी से वॉर लड़ने का. ये एल्बिट सिस्टम लड़के तैयार हो रहे, मेरे से पूछ रहे थे एक बार ना वैसे JSR सिक्योरिटीज कि भाई यार इतनी बड़ी आर्मी करना है क्या? मैंने पैसा बटोरना है वे, ये बंदूक सिर्फ अपने पैसे और अपनी असेट्स को जो है ना कब्जे में रखने के लिए, और कुछ नहीं है. उधर जाओ उधर. चलो वहां जाके लड़ाई वड़ाई कर, इधर नहीं है बेटा. अगर एक कॉलोनी के मामले में यही तो हुआ यार, कॉलोनी मैंने खरीदने का ऑर्डर दे दिए, अब ये कह रहे कि यहाँ पे कमांडो कार्रवाई करेंगे. मैंने कहा बेटा एक गोली भी चली और एक बिल्डिंग का भी शीशा टूटा, पक्का मारूंगा. हाँ, असट समेत बिल्डिंग खरीद रहे हैं भैया यहाँ पे. हाँ बिल्कुल, घर में टीवी फ्रिज सब एक साथ. अपने कपड़े लत्ते सब छोड़ जाओ, जरूरत का सामान ले जाओ, ये पकड़ो कैश और जाओ भैया. नहीं नहीं, सिर्फ इस कॉलोनी का मामले में चल रहा है. ठीक है, बाकी जगहों पर नहीं है, वहां के इतना जोर नहीं है. इस कॉलोनी में आ गए भैया, ये पकड़ो अपना पैसा. अब एक बंदा कह रहा, ये इधर ही एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टोटल कीमत जो है करीबन 4 करोड़ के लगभग है, सामान वामान सब लगा के. किसी ने उसको पता नहीं क्या समझा दिया, कहता 400 ट्रिलियन है. क्यों? कह रहे इस कॉलोनी को पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस है. तो एक कह रहा फ्लैट की कीमत 3,000 करोड़ है.
मैं तो वो सब छोड़, जो पैसा जुए में आ रहा है वो दे दे चुपचाप। कह रहा अभी मकान बिकेगा तब दे देंगे। मैं तेरी माँ की चूत, पैसे दे, भोसड़े ने मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं है, गाड़ देंगे घर के अंदर ही। बना देंगे तेरा क्या घर का सफाई वाला एसपीजी। हाँ कसम, दिमाग की माँ चुद के हाथ में आ रखी। किराया पूछा एक बंदे ने, पता क्या बोल रहा है, 900 करोड़ रुपए महीना। क्यों? है कुछ यहाँ है ऐसा? ये एसपीजी कॉलोनी है, ये एसपीजी कॉलोनी क्या होता है? आपको नहीं पता? नहीं तो फिर क्यों आए हो आप यहाँ? नहीं तो कुछ समझाओ तो सही। पैसे हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। 900 करोड़ रुपए किराया, 2 BHK। पता क्या बोलते हैं? हंसोगे। कहते इस कॉलोनी में बंदा गायब हो जाता, कहते फिर तो फ्री में भी नहीं खरीदेगा कोई। नहीं नहीं, फिर वापस भी आ जाता है, तो फिर क्यों खरीदेगा? पागलों जैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं है रिंकू, रिंकू की माँ जो है पुष्पा, ये पिटते पिटते बची, बता रहे हैं कहीं पे था कुछ मामला, कहा कुछ नहीं बंदों ने। इस मकान का पता है कितने, 8 करोड़ रुपए बोल रही। क्यों? तो फिर जो जुए में हारा है वो पैसा दे। ये सब जुए में पैसा लगा के बैठे हुए थे, और असठ की बात हुई तो सियाणे बन रहे। कह रहे भाई यहाँ की, मैंने कहा भाई औरतों को तुम भगाते नहीं क्या? तो औरतें करी फिर हमारे पति हमारे साथ रहेंगे। मैंने अब तू भी बाहर निकल फिर यहाँ से। मैंने तो बोल दिया, मैंने उठा के सबको फेंक दो बाहर, टमाटर मूली छांट लो, जा करके बेच दो, पैसा तो चाहिए भाई। तो मेरे इंटरनेशनल यार दोस्त हैं इतने हैं, मैं कहा आके रहेंगे, क्या दिक्कत है? तुम्हारे हो बेटा, चूतिया बनती मत करना ज्यादा। कह रहे सुपर सुपर वॉइस में नहीं, भोसड़ी का डायरी में अभी तक एंट्री एंट्री। सुपर वॉइस तो सिर्फ हितेश भाई सुन रहे थे, यहाँ बहन के लौड़े हैं डायरी में एंट्री कर रखी है, तेरी माँ चोद देंगे भोसड़ी के। हितेश भाई मत समझियो, हमारा काम ही है हितेश भाई के पैसे रिकवरी करना, और कोई काम नहीं है। JSR सिक्योरिटीज, पता मैं, जय श्री राम रिकवरी सिक्योरिटीज है। कभी कुछ भी कर लेंगे, चिंता वाली क्या बात है। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, 600 करोड़ रुपए की ब्रेड है। हाँ हाँ, 1 लाख करोड़ रुपए वैल्यू गेम चल रहा है। अच्छा, कहाँ आएगा, कहाँ से ये? उससे जाकर पूछो, उससे वो कहाँ से लाता है, वो उससे क्यों पूछे, ये उससे कौन है? तो मेरा नाम जो है ना हितेश है, मेरा कोड रखा हुआ उससे। तो एक पहुंच गए भी महरौली थाने, या DPCP 3236, बंदा भी था साथ में। तो आप कौन हो जी? DPCP 3236, वो चेक करा जी। तो जी आपका कोड तो नहीं है ये, है हमारा कोड है। आपको कैसे मिला ये? उसको कैसे मिला? पुलिस वाले फिर सर पकड़ के बैठ गए। उसको किसको? उसको तुम जानते नहीं हो? हैं? अरे मैडम किसको? आप लेके आए हो, आपकी बात कर रहे हैं। उसको उसको आपको कैसे मिला ये? हमें कैसे ही मिला? सुपरवाइजर से मिला है। मैडम ये सुपरवाइज किया तो स्पेशल ऑर्डर, उन्होंने वायरलेस किया कि वो स्पेशल ऑर्डर पता कर। कह रहे जी DPCP 3236, नाम क्या है? नाम क्यों बताएं, सीक्रेट है। क्यों? नए नए शब्द यहां से जाते हैं, इसमें पकड़ में आते हैं सबके सब। सीक्रेसी वालों ने कहा, ये सीक्रेसी क्या होता है जी? आपको नहीं पता, फिर आप पुलिस में नहीं हो। बंदा पता क्या कह रहा है, मैडम सुबह सुबह भांग खा रखी क्या? 28 साल की नौकरी हो रही है दिल्ली पुलिस में, आप हमें ही कह रहे हो? तो क्या हो गया? ऑफ ड्यूटी में चल रहे हैं, ये ऑफ ड्यूटी क्या होती है?
आप लोगों को कुछ नहीं पता है, आपको बहुत कुछ सीखना है। और जब पिटे ना, एक अंदर से निकल के आया है, कह रहे ये ऐसे नहीं मानेंगे कि इन्हें दुखी कर रखा है इन लोगों ने। 4 लट दिए बनमनाते हुए खींच के। और भाई साहब जब पड़े ना पिछवाड़े पे लट, तो बंदे के ना ऐसे फट गया, मांस फाड़ दिया भाई। और 4 दिए बनमनाते हुए, और ज्यादा जोर से लग गई होगी। उस समय तो पता नहीं, पहले तो हीट आती है, उसके बाद फटना शुरू होता है। देख लेंगे तुम्हें, देख पिक्चर की शूटिंग है, पिक्चर की शूटिंग है। अच्छा। पुलिस वाले कह रहे, कहते ये साले पागल हो गए क्या भूतनी के, कौन है ये लोग। वो कह रहे यार वो ट्विटर हैंडल पे जो लिखता है ना हितेश, कह रहा है यार वो DPCP 3236 उसी का नंबर है, बेल्ट नंबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो। तो यार उनको ले आते हैं, कह रहे अब नहीं ला सकते ना। तो मतलब कह रहे अब नौकरी गई, 1 दिन की नौकरी मिलती है सिर्फ यहाँ। पहले ही बोला होता है, सब आते हैं ऐसे ही 30 मार खा बन के। और फिर पूछता हूँ ट्विटर हैंडल वाले को DPCP 3236 कैसे मिला। भाई कैसे भी मिला हो, तुझे क्या मतलब है। वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236, PMO 3236, प्रेसिडेंट 3760 लिखा है। और फिर उसके बाद बेचारे जो है रात भर ड्यूटी देते, इधर उधर घूमते हैं। फिर देखते हैं कि ये, तो यहाँ कोई ना कोई मिल जाता है मोहल्ले वाला इधर उधर खड़ा हुआ। इनके किस्से सुनाता हूँ। कोई A204 कौन सा है, किस नाम से है, हितेश नाम से। वो तो अभी सोया हुआ होगा, जो तो सोता रहता है, नौकरी वोकरी कहाँ करता है। निकम्मा तो है, कमाता दमाता है नहीं, बीवी को मारता पीटता रहता है। तो नए कांस्टेबल आते हैं, अच्छा ऐसा है ये लड़का, करता पता नहीं ट्विटर पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख देता है। आप कहाँ रहते हो, ये राजी घर हमारा। अच्छा क्या नाम है आपका। पुलिस वालों की आदत होती है, वो जिससे पूछेंगे उससे भी नाम पता पूछ जाते हैं। अब यहाँ से फिर 204 में पहुंचते हैं, तो वहाँ जिम के पास एक 204 बिल्डिंग और है, उसमें कुछ फ्लैट हैं, उसमें बैठे हुए बंदे बीजेपी के और कोई ना कोई आकर कॉलोनी वाले भी। वहां सब नेता बने फिरते हैं। पुलिस वाले वापस जाते हैं, कह रहे यार ये किसका नंबर दिया है DPCP 3236 का, क्या है ये तो बंदा यार, कहते हैं नौकरी नहीं करता, अपनी बीवी को मारता पीटता है, ट्विटर पर लिखता रहता है। क्या तू उसके घर गया। नहीं नहीं वहां पता किया था मैंने, कह रहा अभी सो रहा होगा, बाहर निकलेगा छुटते ही गाली देगा। पागल है क्या ये। क्या तू वहां कुछ बोल के तो नहीं आया किसी को। नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला। किससे पूछा, कह रहे वहीं पे 2-3 औरतें खड़ी थी। बैठ, नौकरी गई तेरी, वेरिफिकेशन नहीं आती तुझे। अबे ये पढ़ियो जरा डायरी, उसकी रखी हुई है, एक ही बार पढ़वाते हैं डायरी। पढ़ी। IG चल रहा है बस समय, इंस्पेक्टर जनरल है वो। यही देख, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मत देख, पुलिस वाला है ना तू, सिर्फ ये देख पुलिस का रैंक। PMO वालों को उसका PMO रैंक देखने दे, और प्रेसिडेंट ऑफिस को उसका प्रेसिडेंट रैंक। पुलिस में है ना, तो पुलिस का रैंक पढ़ सिर्फ इसका। तू कांस्टेबल है, तुझे कहाँ ले आकर फेंकेंगे तुझे अंदाजा भी है। डेपुटेशन चल रही है इसमें पुलिस और आर्मी में। कह रहा जी मैं तो खुद उल्टा सीधा बोला है, तो जा आप घर, वहीं सस्पेंड और टर्मिनेट है, वर्दी टांग दे। ट्रैक सूट रखा है पहन के जा। ये जो ट्रैक सूट पहन के घूम रहे हैं ना ब्लू कलर के, ये वही वाले ट्रैक सूट है, इन सबकी नौकरी गई है। जो ब्लू कलर के ट्रैक सूट में नहीं घूम रहे, इन सबकी नौकरी गई, इनकी सबकी वर्दी रखवा लेते हैं वहां पे, और ट्रैक सूट दे देते हैं, जा बेटा घर। शर्त लगा लो, अगर आपके हस्बैंड घर अगर ट्रैक सूट में आ रहे हैं ना, ब्लू कलर का है, डीप ब्लू, तो समझ लो उसकी नौकरी गई, वर्दी उतार ली गई है। यहाँ ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, CBI वाले बने फिर रहे हैं। तो उसको किसी ने कहा, कहता भाई
ये हरे राम का किस्सा नहीं सुना? कल परसों का बता रहे थे। कह रहा पागलपंती की आदत पार कर रखी सबने। पता है क्या कहता है? कहता वो हरे राम है, हरे राम। अच्छा। कह रहा पहले मेरे पास पैसा लेके आओ। सुन रहे हो? मैं सोचा भाई होगा। मुझे पता है यार, मरियम नवाज ने चैलेंज लिया या बच्चे पैदा करवाने का, शादी करवाने का। तो क्या बोलूं यार। तो वो सीबीआई ऑफिस गया। अरे राम, सीबीआई वालों ने कहा कि अबे क्यों तू अपनी माँ चुदवाने पे तुला है भोसड़ी के? कहता हरे राम है हमारा, तमीज से बात कर। करे यार तू दिमाग की माँ मत चोद। यहाँ सीताराम भी बैठा हुआ है अभी। यहाँ सीताराम, सिया राम, श्री राम सब यहीं नजर आएंगे तुझे। क्या भाई सीबीआई का ऑफिस है ये, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कह रहा आप जांच नहीं कर सकती? कह रहा सीबीआई सस्पेंड है। कह रहा वो इंटरनल मामला है, अपराधियों के लिए नहीं है। अपराधियों के लिए आज भी सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। कहता हम 9968 मेरा बेल्ट नंबर है। ये हरे राम बोल के आया है सीबीआई ऑफिस में। 9968 मेरा बेल्ट नंबर है, ये हरे राम बोल के आया है। कह रहा क्या बेल्ट नंबर है तेरा? कह रहा हम सीबीआई में है। सीबीआई में है? आई कार्ड दिखा, बेल्ट नंबर है 9968। वो चौंक गया बंदा, 9968। उन्हें अंदर से बुलाया दो चार बंदे और, तो बुले जरा औरों को भी। कह रहे 9968 बेल्ट नंबर किन का है? कह रहा हम खड़े हैं ना, हमारा है। कह रहा हमें अच्छी तरह पता है किसका बेल्ट नंबर है ये। कह तू साहब के पड़ोस में ही रहता है ना? तो वो कैसे हो जाएगा सीबीआई ऑफिसर? अबे वो कैसे भी हो, तुझे क्या मतलब है? तू कैसे है 9968 ये बता। तेरे खिलाफ तो भग्गू ग्रुप की जांच चल रही है। जमीन का पैसा कहाँ है? थप्पड़ ही थप्पड़ दिए भाई हरे राम के। इतना मारा ना इसको उस दिन। फिर ऐसे मैंने इसको एक दिन एडवाइस दी थी, कुछ बात बोली, मैंने चल कोई बात नहीं, मैं क्यों बोलूं, मैं मेरे को क्या पड़ी है। बहुत पहले अपनी वो भग्गू ग्रुप के वो उसकी पता नहीं कमेटी का चुनाव होता, उसकी फाइल लेके आया मेरे पास। कह रहा है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करा दो। उसमें मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तेरे खिलाफ तो सीबीआई की जांच चल रही है। जहां सीबीआई की जांच हो वहां से तो हितेश भाई बहुत दूर खड़े हो जाते हैं पहले ही। अच्छा भैया, वो तुम समझो तुम, हम ऐसे बंदों की तरफ तो मुंह भी नहीं करते। उधर घुमा लो उधर मुंह, सीबीआई की जांच चल रही है। मेरे ससुर को लपेट दिया सीबीआई ने। पता तुम्हें? नहीं मालूम? नेहरू राय सीबीआई की जांच में था, सीबीआई वालों ने पकड़ रखा था तभी उससे। मुकेश को भी नहीं पता, मुकेश भी तो सीबीआई की जांच में। और सीबीआई वाले जांच करते बड़े तरीके से हैं, ठीक है, और दिमाग इनका वैसे खराब हो रखा है, ठीक है। अरे राम को बंदा यूं बैठा बैठा घूर के देख रहा, मैं साइड खड़ा खड़ा चुपचाप देखा, मैं कहा, देखो करते क्या है। घूर के देख रहा है बड़े प्यार से। क्या तेरे को पहले भी फोन किया था ना? कह पहले तो ये इस बात की खुंदक निकालनी तेरे से। अगली बार जब भी फोन आया ना चुपचाप आ जाया कर। सीबीआई को पता है पूछताछ का तरीका क्या होता है? नहीं मालूम? सीबीआई वाले सुबह बुला लेंगे ऑफिस, बैठे रहे, और कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है, शाम को सामने सामने बैठ के चाय कॉफी पीते रहेंगे, खाते रहेंगे। बाथरूम उधर जाओ, उधर 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 बाहर वाले में, ठीक है। और वहां जहां एक बार इंक्वायरी शुरू होते वहां सब बैठे रहते हैं। फिर रात को 8, 8:30, 9 बजे पूछेंगे कुछ नहीं, अच्छा जाओ, कल आ जियो टाइम पे। थाने वाली जांच नहीं है, कभी सीबीआई की जांच के चक्कर में मत पड़ जाना। पूरा दिन घुमाते हैं, पूरा दिन बैठा के रखते हैं।
मुकेश सीबीआई की जांच में। नेहरू राज तभी तो मैंने दूरी बना ली थी। मैं तो नहीं जाता इसके यहाँ, सीबीआई की जांच में है कुछ मामला इसका। 3 मर्डर केस और कुछ पैसे का मामला है। नहीं मुझे नहीं मालूम, बिहार सीबीआई वाले कर रहे हैं। क्या बात, स्टेट में सीबीआई नहीं है? चूतिया समझाएगा। मेरे से कह तो रहे थे, कह रहे यार तू पीछे पड़ गया 99 68 क्या करके, ये साले भोसड़ी के पागल हो गए। मेरे को तुम समझो यार, वो मेरे और तुम्हारी बात चल रही है, मार पहन के लंडो इनकी माँ की चूत सालों की। वो तुमसे अब तक भग्गू ग्रुप नहीं लपेटा गया? तो करना क्या है, जमीन थोड़ी उठा कर ले जाएगा भग्गू ग्रुप। मेरे को मैंने तो बोला था, मैं कोई बात नहीं, मैं देश की जनता है, एमएलएम में नुकसान हो गया, अगर पैसा तो हम भग्गू ग्रुप का रिकवर कर ही लेंगे, इनके पेमेंट करा देते हैं। मैंने कहा बताइए कि इंटरेस्ट वापस नहीं करेंगे, तो लोग मना कर रहे हैं। मैं कहा रखो फिर अपने पास। अब ये लोग जो है, नहीं नहीं, सीबीआई वाले जो चूतिए गए वो उठा बहन जो बिना मिनट में गोली मार, और कुछ नहीं करना। जिस जिसके नाम रजिस्ट्री है सबको गोली मारनी थी। मेरे से कह रहे यार कोई तो तरीका बता दे जांच का। मैं कहा तरीका जो बचा क्या है, रजिस्ट्री हो गई है। बिना देर करे जिस जिसके नाम रजिस्ट्री का आ रहा है ना, भटाभट गोली मार, और कुछ नहीं करना। मैं कहा जो बचा ही क्या है, अबे देश की रजिस्ट्री बना रहा है। मैं तो जिस दिन पहली बार सीआईए वाली बात आई थी, मैंने उसी दिन ज्वाइनिंग से मना कर दिया था। मैंने जिस दिन आप क्लियरेंस दे दोगे मैं बात कर लूंगा। इनको किसी को पता नहीं था, ज्यादातर को मेरे अंगूठे में चाक्षर है। बाद में पछता रहे, डायमेंशन में कौन नहीं जानता था, अब पछता रहे। और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वहां बिना देर करे मगर ठोक दे, बिना देर करे, कोई रोक टोक नहीं है। फेक रजिस्ट्री बनाना पे वैसे भी अलाउड नहीं है। तो तुम अपना काम करते रहो, डिपार्टमेंट वो उधर वाले जानेंगे। इतने बड़े मामले में तुम्हारा कंसर्न थोड़ी है कि नोटबंदी में क्या हुआ नहीं हुआ। मैं तुम्हारे पास फाइल आई है नोटबंदी की जांच की, बात खत्म है। उठाना चाहते हो तो बोल दो, एफ आई आर रजिस्टर्ड कर लो, एक नोटबंदी की एफ आई आर रजिस्टर्ड कर लो। हासिल कुछ नहीं होगा, गोली मारनी और कुछ नहीं करना। जिनका पैसा होगा, फेक नेम अनरोल किया नहीं किया वो समझेंगे ना ये लोग, हमें क्या मतलब है। पैसे आएंगे, पैसे पेमेंट का ज्यादा लोग नहीं है, इनके अपने ही लोग थे। जमात का नाम सुना तुमने? मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ आईएसआई की। मरियम की ब्रेन फीड पकड़ी थी हमने। मरियम भग्गू ग्रुप में पार्टनर है यार। मरियम नवाज शरीफ लिख ले तू, मरियम नवाज शरीफ भग्गू ग्रुप में पार्टनर है। ये लेना क्या बात कर रहा है तू, चूतिया बस समझ मेरे को। ये है कोड, मोती का कोड है। चूतिया समझ रहा है तू मेरे को? जांच कोई सी भी ले आ, पैसे दे दिया मेरे बस, पैसा लगता है इन्फॉर्मेशन के। मरियम नवाज शरीफ जब मर्जी अरेस्ट कर ला, सिग्नेचर है इसके डॉक्यूमेंट में। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंक बना रही थी, लोटस ग्रुप। लोटस ग्रुप में अमित शाह है। हम्म। ये भारत की रजिस्ट्री बना रहे थे मिलके खालिस्तानियों के साथ। मरियम नवाज शरीफ भी तो खालिस्तानी है। वो है वालिया, इंडा बिंडा डा डिमडे डबडा डिमडे। तो क्या हो गया? मेरी बात सुन, सुन तो सही। कुछ नहीं करना, भग्गू ग्रुप के कॉन्स्पिरेटर्स पकड़ने हैं।
नवाज शरीफ है, बैठा करके प्यार से जब मर्जी उठा ला, आओ मैडम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारा कोई दोष नहीं, इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी पूछताछ है, सीबीआई ऑफिस आ जाना। बचना हो तो बचने के लिए हरे रंग का सूट मत पहन लेना और लाल रंग की लिपस्टिक मत लगा लेना बस। देख यार, अरे खर्चे लायक तो पैसे भेज ही दे यार। मेरी बात सुन, देख इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुझे, इतनी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन दी है तुझे मैंने यार। Actually, it was a conspiracy was designed by Khalistani group. What they did, actually, they created a MLM, and by that they are start asking persons to citizen of India to invest money in Bagu group. They will purchase some land, and after some time, as the land's price will go high, they will send it and give you a profit. Or if in between you want to ask your if you ask your money, in that case they will give you a registry। पर ऐसा हुआ नहीं, कुछ एक जगहों पे लेके गए, 10 एकड़ जमीन दिखा दी, अब इसमें से कौन देगा जी आपको, प्लॉट थोड़ी अब बिकेगा, दे देंगे पैसा। तो ये चल रहा था, और धीरे धीरे वो जमीन की रजिस्ट्री जो है, पहले यहाँ से वो नहीं, इसमें सब इन्वॉल्व हुए, यहाँ तक कि मोदी भी जो है धकाधक उसने लोक कल्याण मार्ग की भी रजिस्ट्री बना ली, और कहा यार ये आसान तरीका है, और रजिस्ट्री धीरे धीरे जो है ना पाकिस्तान स्लिप करने की कोशिश करने लगे। तो जब हमारे पास फाइल आई थी, ठीक है ना, विजिलेंस के पास बगू ग्रुप की, तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता था कि सीबीआई वाले तो लगे हुए हैं। अब विजिलेंस वालों को काम दिया गया तो पहले दिन ही मैंने बोल दिया था, नहीं तो कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट में उठा इतनी से देर का काम है। ये सब लग गए अपना हाथ जोड़ करके कि भैया बचे कैसे। मैं कहा बचोगे कैसे, जो कर चुके हो उससे नहीं बचा जा सकता। हाँ करने की सोच रहे हो तो एसपीजी सिक्योरिटी वाले कह देंगे यार मत कर, जो कर चुके हो उससे कैसे बचोगे। नेहरू राय तो इतनी भयंकर, पंडित उमाशंकर शुक्ला, मोदी को थोड़ी पता था कि सीबीआई जांच में ये इसके एफआईआर रजिस्टर्ड कर रखी थी सीबीआई ने बहुत पहले ही। एक एफआईआर में तो वहीं से था, ये सुपरवाइजर तो उसकी पकड़ ही ली थी, चूतिया को पता नहीं था, सीबीआई वाले सब जानते थे, और सीबीआई वालों को सपोर्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि पीएमओ के अंडर में। मैंने इनको बोला था, मैंने तुम बस अरेस्ट लेने में देर मत किया करो, पब्लिकली अरेस्ट ले लो उठा करके, अपने आप समझेगी संसद और पार्लियामेंट, कोई अपने आप समझेंगे, मिनट में उठा लिया करो कि सही, सारे आम उठाओ सारे आम, ऐसा नहीं बनती एजेंसी, इनका समझ नहीं आ रही, बेवकूफ हो तुम। गाड़ी लेके गए सीधा, तेरी है ऐसी की तैसी, बैठ इसमें चुपचाप, मीडिया में तो मीडिया में से उठा लो, तब थोड़ा सा एजेंसी का नाम जो है मीडिया में, हमारा भी तो नाम आना चाहिए। इन्हें पुलिस वालों की भी नहीं समझ में आ रही, वो छोड़ना वो क्या चल रहा है, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस तुम्हारी सोच ली है, तुम्हें नहीं पढ़ना इन मामलों में। जब भी तुम डिपार्टमेंट में रह करके इससे आउट ऑफ डिपार्टमेंट सोचोगे, तुम ड्यूटी कर ही नहीं सकते। हम तो सीधा सीधा जवाब देते हैं, हमारी जुडिक्शन नहीं है भैया। गाइडेंस के लिए हेल्प डेस्क पे चले जाओ, हेल्प डेस्क वाले भी कुछ नहीं करेंगे तो ठीक है, आप लिख के दे जाओ, हम तो एक दिन में पता करके बता देंगे आपको, बस इतनी सी बात बोलते हैं हम तो। मैं बता तो रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास फाइल आई ना, बहन किसका नाम लिखा हुआ ये मरियम नवाज शरीफ में, इसकी माँ का वो सड़ा, मैंने बहन के लोड़ो, अब ये चौथ है। वह उसी दिन सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा वहाँ की चूत का बैठ के लोड़े सब पिटेंगे, ये सब पिटेंगे। लोड़ा 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 कमेटी वाले को भी समझाया था, मैं कहा यार
मैसेज भेजा था, मैंने कहा जी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी, अरे राम गरा ये सब जो है कह रहे हैं कि आप कमीशन ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, जो भी है। फिर भी मैंने इस बात को बोला नहीं। मैं कहा क्योंकि हो सकता है टंग स्लिप हो या माइंड स्लिप हो, या उसको तो नहीं लिया। बट अब सीबीआई वाले जहाँ पे जांच करने के बाद चीज़ बैठाएंगे, वो ब्लंडर समझेंगे कुछ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो, समझ में आ गई। इंडिया के टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उसमें, टॉप मोस्ट। वो कुछ नहीं समझा, पुलिस को जांच से मतलब है, रिजल्ट क्या आएगा उससे क्या लेना देना है। अब ये कह रहे कि इंडिया में तो इंटरनल करेंसी चली रही है, उससे तुम्हें क्या मतलब है। ये डिपार्टमेंट्स को क्या मतलब है, वो तो फाइनेंस फाइनेंस वाले देखेंगे ना। ये जरूर है नोटबंदी पे आप एफआईआर रजिस्टर्ड कर लो, अभी कर लो, पहले से करके रख लो, एक फायदे में रहोगे। नोटबंदी पे ना एफआईआर रजिस्टर्ड कर लो। एफआईआर रजिस्टर्ड करके नोटबंदी में आराम से जो है इंटरपोल को फॉरवर्ड कर दो, बोला जी हमने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है, आराम से बैठ जाओ। हाँ हाँ, क्लिप निकाल लो उस दिन की, पीआईबी की प्रेस रिलीज होगी 8 नवंबर 2000। नहीं नहीं, उसमें लिखा हो चाहे, मतलब एक ही है, उसी बेस पे हुआ है काम सारा। आराम से बैठ के जो है, बहुत टाइम है, आराम से इन्वेस्टिगेशन करते रहो, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करते रहो इसके पूरा। सब पूछ लो भाई, ऐसा है, लड़के लड़कियां लगा दो, मेरा करना कुछ नहीं है। इंटरनेट पे बैठ के नोटबंदी से रिलेटेड सारे ग्राफिक्स लिंक समेत डाउनलोड करने हैं, लिंक समझ में, प्रिंट आउट निकालने हैं, फिजिकल, बैठ के आराम से बनाते रहो। एक टीम को पांच पांच जने बैठा दे, बैठ करके अपना जो है ग्राफिक्स निकालते रहेंगे, बाद में शॉर्ट कर लो। और राइटअप्स निकालो अखबारों के, किस अखबार ने क्या कहा उसके नोटबंदी के बारे में, हिंदी का ज़्यादा निकालना। इसकी इसकी रजिस्टर्ड स्टेटमेंट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के आराम से बैठ के फाइल बनाते रहो, कर। तो हमें कोई मतलब नहीं है, देर या सवेर केस आना ही है तुम्हारे पास भाई, 100% आएगा। पहले ही अपनी तैयारी करके बैठो। मेरी तो शुरू से आदत रही है, वो देखा ना, हाँ भैया वो एफ आई आर रजिस्टर्ड कर सबसे पहले। ये वो नियम, वो पुराना वाला सिस्टम खत्म है। इतनी एफ आई आर कैसे, क्यों नहीं करेंगे भाई साहब। एफ आई वो वाले एस एच ओ और ए सी पी डी सी पी नहीं है एम आई जी, कि एफ आई आर रजिस्टर्ड नहीं करी, वो छोड़ना भाई। कंपेयर कर लेना, 10,000 एफ आई आर हुई है ना, है, 10,000 में से सॉल्व कितनी करी है, तब मिलते हैं मेडल्स। पैसा हो ना मेडल्स तो पैसा हो ना, मेडल मेडल तो बनते ही रहते हैं, वो तो बड़ा टाइम लगेगा नोटबंदी का उसमें। और जितने भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे जो है इनके सब बैंक अकाउंट वगैरह सब सील करने की तैयारी कर, एक झटके में आराम से ट्रेस लेते रहे, घूमते फिरते रहे, और भाई क्या हाल चाल है। बड़ा तगड़ा केस है, मरे से मरा भी जो है ना, कुछ नहीं कुछ तो 80-90 लाख करोड़ रुपए कमा जाएंगे। मैं दे देता हूँ खर्चा, लिख ले, 5 करोड़ रुपये पर डे जांच के लिए, नोटबंदी की। इंटरपोल अकाउंट लिख ले, इंटरपोल अकाउंट बंद थोड़ी हो गया भारत में पैसा लाने के लिए, 946 है यार, क्या बात कर रहा है। पुलिस के लिए पैसा कम नहीं होने दूंगा, 946 है भाई, इंटरपोल का काम है। किसी भी देश में पुलिस को कोई समस्या होगी, हम है ना, हम है ना भाई। पुलिस का पैसा खत्म नहीं हो सकता, इंटरपोल वाले जिंदाबाद है। कोई क्राइसिस आ जाए, कैसा ही आ जाए, कुछ आ जाए, 946 है ना भाई। इंटरपोल से सीबीआई में पैसा क्यों नहीं आएगा, मैं सैंक्शन कर रहा हूँ ना इंटरपोल की तरफ से 5 करोड़ रुपए पर डे।
करता रहे जांच बैठ के आराम से। नोटबंदी की, डिमोनेटाइजेशन की जांच के लिए इंटरपोल ने एफआईआर ले ली ना। 5 करोड़ रुपये पर डे बहुत है, समझ में आ गई ना। क्या बात कर रहा है, देश की बाउंड्री हो ना हो, नाम हो ना हो, डिपार्टमेंट है ना, बात खत्म। इंटरपोल वाला, इंटरपोल वालों का काम ही यही है। जब मैंने इंटरपोल में पैसा भेजा अपना, तब इंटरपोल वालों ने मना किया नहीं ना, ये तरीका होता है। अब इंटरपोल वाले यहाँ भेज रहे, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। डाले पुलिस है, एनएसजी है, पैसे की चिंता नहीं करनी है यहाँ पे वर्दी को। इसलिए नहीं मैं कोई बटरिंग कर रहा हूँ, जो बात सही है सही है, जो तरीका है, जो जो तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट्स है मैं तो बता दूंगा। ये मैं यहाँ से ले ले पैसा, इंटरपोल से मंगा ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ख़त्म भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं उठता। इंटरपोल वाले है ना। 5 करोड़ रुपये पर डे तो नोटबंदी की जांच के लिए ले लो, और बाकी कोई दिक्कत आए तो बता दो। जितना पैसा का होगा उतना उतार देंगे यार। वो उससे हमें मतलब नहीं है। अब भाई हम कह रहे हैं ना, आप इंटरपोल बोल रहे, आप एफआईआर रजिस्टर्ड करके 5 करोड़ रुपये रखो वहाँ, बोल लो पैसा आपके पास आता रहेगा, करते रहो बैठ के आराम से जांच। आ जा भैया, पूरा डोजियर बनाने के लिए अलग बना लियो, और पूरा एक रूम तैयार कर लियो, सबके वहाँ फोटोग्राफी करे बड़े प्यार से, आराम से जो है ना सबको। आ जा भाई बैठे, बग्गू ग्रुप का भी जो है ना सबका डोजियर बनाना, जिन जिन जो जो इसमें, हाँ हाँ, प्रमोटर जो जो सबके डोजियर्स बनेंगे। अरे ये अब ये हाँ, ये जमात वाला खेल समझाता हूँ मैं तुझे। ये जमात उद दावा का खेल है। इसमें जिन्होंने जमीन खरीदी है ना, वो सब जमात उद दावा के लोग हैं। आपस में ही इन्होंने खरीदी और खुद ही पैसा लगाया, कुछ नहीं, बस रजिस्ट्री उठाने का खेल था। पीछे से पैसा समझा नहीं खेल। जमात उद दावा, हाँ जी, जमात के लोगों का खेल है ये, बग्गू ग्रुप वाला। क्या करे यार, खाली पीली बैठ के कुछ तो पढ़ ही लेते हैं यार। मुझे भी दे दे यार थोड़ा, मैं भी बैठ करके डॉक्यूमेंट बना लूं और क्या। जमात दावा ने पता है क्या किया, जिस दिन मेरे पास पहली बार फाइल आई ना बग्गू ग्रुप की, मेरे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ये तो चौध है क्या यार, इतनी पब्लिक तो भारत में एमएलएम में पैसा नहीं लगाते। तो इन्होंने क्या करा, जमात दावा में जमात की जो फैमिली होती है, इसमें ना आईएस है, 2 लोग होते हैं जुड़वा, एक जगह रहता है, दूसरा दूसरी जगह रहता है। हम्म। तो ये क्या करा इन्होंने कि इनके ही लोगों ने पैसा लगाया और रजिस्ट्रियां तैयार कर ली, फिर वही पैसा वापस दे दिया। समझा खेल। फिर एक और रजिस्ट्री तैयार करी। तो बड़ा दिमाग से खेला गया। और जमात का ऑफिस कहाँ था, पाकिस्तान में, हाफिज सईद। तभी तो अपने हाफिज सईद को मारने की सोची, मैंने पहले इसको मार। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन, अबू बकर अल बगदादी, तुम्हारा क्या नाम है इसका, नवाज शरीफ, इमरान खान, परवेज मुशर्रफ, बहुत लोग शामिल थे बग्गू ग्रुप में। मेरे से कह रहा सीबीआई डायरेक्टर की चेयर नहीं दोगे। मैं कैसे नहीं दोगे कैसे नहीं दोगे, जांच है भाई। कह रहे भग्गू ग्रुप खोल के दिया, खोल के अब उधेड़ दूंगा यार, तू क्या बात कर रहा है, ऐसा उधेड़ूंगा ना किस सिलने वाला भी कहेगा यार ये किया किसने ये तो। और कुछ नहीं है बग्गू ग्रुप, खालिस्तानियों और जमात की मिली भगत है।
जमातुद दावा वाले जो है ना दिमाग लगा रहे थे, मैं ये बेवकूफ है, जमीन उठा कर ले जाओगे क्या? फ्रॉड इज फ्रॉड। जमीन जो है नागरिकों के बीच में खरीदी बेची जा सकती है, ये एक विनिमय का एक तरीका है, बट देश की जमीन जो है ना किसी और को नहीं बेची जाती है। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो जमीन नहीं बेचता। ठीक है, अगर मैं मान लो पाकिस्तान में जमीन खरीदूंगा तो मुझे पाकिस्तान का सिटीजन होना जरूरी है। आज मैं इंडियन सिटीजन और पाकिस्तान की जमीन का मालिक नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तान का सिटीजन डिक्लेयर करेंगे। यह है ग्लोबल सिटीजन, इसलिए मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं जमीन खरीद सकता हूँ। पर अगर मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप डिनाई कर दूं तब नहीं। मुझे लगभग देशों की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो मना नहीं करता, बट मैं यहाँ से रह करके वहाँ जो है क्या कहते हैं जमीन वहीं रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा के बैठ गए थे। मैं काफ़ी दिन तक मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार साला ये खेल है क्या। फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा यार ये वही घर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है हरे राम के घर पे, और मुझे पता था मैं ये सब तो आईएस के बंदे हैं और जमात के हैं। मैं इसकी माँ की चूत बहन के रोड, ये खेल है। पैसा आ रहा था बाहर से, कहीं और से, खालिस्तानियों का था या किसी का भी था। ये जमात और आईएस के बंदों को घरों में पैसा दे रहे थे, ये लोग अपनी बिल्डिंग भी बना रहे और जमीन भी खरीदने का पैसा, तो ऐसे पैसा घुमा के जमीन की रजिस्ट्री में भेजा गया, और उसके बाद उस रजिस्ट्री को जो है क्या कहते हैं वेरीफाई करा करके उसको जो है कागज कहीं और भेज दिए गए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा यार ये है देशद्रोह। तो तत्काल आदेश से भग्गू ग्रुप पे एनएसए लगाई जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कह रहे एनएसजी कमांडर की कुर्सी मैंने मुझसे लेके दिखाओगे, मैं रेल बना दूंगा बेटा तुम सबकी। उधर की बात छोड़, उधर छोड़ दे। मैंने एक रास्ता तो डिपार्टमेंट में पैसा लाने के लिए शुरू में ही खुला छोड़ा था, इसलिए मुझे पता था जरूरत पड़ेगी इंटरपोल की। यहाँ पे एक चैनल चाहिए पैसे का यहाँ पे पुलिस वालों को, नहीं तो ये साले अपनी माँ जरूर चुदवाएंगे बहन के लंडे। मैं से कहता तू गाली गाली, ये बैठ के लोड़ो तुम्हारी रोड पे घोड़ी बना के नहीं गांड मार ली, मेरा नाम भी हितेश नहीं। मैं कहा मैं बहुत वाहियात पुलिस ऑफिसरों में से एक हूँ, अभी तुम मेरे बारे में पता नहीं है। मैं बहन के लंडो इतना मारूंगा ना, तो इन्होंने दिमाग लगाया। मैं बड़े दिन तक बैठा बैठा सोचता रहा, मैंने माँ की चूते चोद है क्या यार। भाई यार जब जब इनकी भाई साहब मैंने प्रेतवाणी खोली, प्रेतवाणी कहते हैं, मैं बैठा, मैंने माँ की चूत कैसे पता लगा, तब पता लगा ये बहन के लोड़े ये तो जमात के बंदे हैं। लिख, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ रहे हैं जमातुद दावा बगू ग्रुप में। बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया भारत के खिलाफ। हाँ हाँ, जमातुद दावा, आईएस, इस्लामिक स्टेट, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और जुदा जुइशों का संगठन है, अल सबब। मरियम नवाज बुरा मत मानना, एक एफआईआर आप तक पहुंच सकती है। क्या आप एक सवाल पूछेंगे एफआईआर में हम आपसे, या तो वो उसी समय कैंसिल हो जाएगी या वो आगे बढ़ेगी। क्या आपने कभी मेरी वाइफ और बच्चों को किडनैप करने का आदेश जारी किया है? डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। अल सबब, क्या आपने कभी हितेश मंडल ट्विटर हैंडल @हितेश1 की वाइफ और तीनों बच्चों को मारने या किडनैप करने का आदेश दिया है किसी तरीके से? सीबीआई वाले हैं मैडम, क्या बात कर दी। एफआईआर में ही पूछते हैं हम सवाल, हम नहीं पूछते वैसे। सवाल एफआईआर में ही पूछे जाते हैं जी। एफआईआर पर क्यों नहीं, पुलिस वाले एफआईआर पे ही सवाल दर्ज कर, क्या कहते हैं, सवाल पे ही एफआईआर दर्ज करते हैं।
एफआईआर कैसे दर्ज होती है, उसमें ये थोड़ी सवाल पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं। पहला सवाल जैसे डिमोनेटाइजेशन है, आपने नोटबंदी क्यों करी? आपने नोटबंदी क्या सोच के करी? किसके कहने पे करी? क्या आपको इसके नफे नुकसान का अंदाजा था? क्या आपने कभी इस मामले में विदेशी सुझाव लिया था? क्या आप इसके भयावह परिणाम से अवगत थे? क्या आपके कभी किसी आतंकवादी संगठन से लिंक रहे हैं? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो निम्नलिखित आतंकवादी संगठनों में संलिप्त था? आईएसआईएस, जमातुल दावा, हरकतुल अंसार, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, मेन मेन के नाम लिख लेते हैं। पाकिस्तान जाने से पहले आपकी क्या किसी भी तरह से पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से बात हुई थी? डिमोनेटाइजेशन की सोच आपके मन में कब आई? एफआईआर ऐसे रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर में आपको ये नहीं लिखना कि डिमोनेटाइजेशन इतनी तारीख को इस बंदे ने किया था, ना 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 ना। सवाल पूछने हैं आपको। अगर वो सवाल का जवाब दे पाया और आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है जांच ऑफिसर को, तो एफआईआर जो है उसी समय क्लोज कर दी जाती है, कॉपी जाएगी। और नहीं तो फिर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। उसी समय जो है उसके साथ कॉपी पेपर लग जाते हैं। ले भैया लिख। एक एक सवाल का जवाब एक शीट में आना चाहिए, एक या दो या चार में। एक एक आंसर खत्म, शीट हटा दे। और कुछ जवाब देना जिसके बारे में आपने नहीं। अब दूसरा सवाल देखो जी, बैठा के रखो आराम से, पहले फिर बताएंगे हम। मर्डर केस में एफआईआर कैसे होती है? ऐसी होती है, आपको पता लग गया मर्डर है, एफआईआर लेके आनी होती है कि हाँ जी इस एड्रेस पे इतने बजे हमें सूचना मिली है कि यहाँ पे एक हत्या हुई है। क्या ये वही घर है? एफआईआर ऐसे शुरू होती है, फिर लग जाती है फाइल में, फिर फाइल बन जाती है। ले भाई लगा दे फाइल। फिर कुछ भी पता लगता है, शीट निकाली, लिख भाई, फाइल में शीट लगाते चले जाते हैं। समझ में आ रही ना? वो अपना रिकॉर्ड में रहता ही है। ये तो फिर पर्सनल अपनी अपनी ऑनेस्टी होती है। डिपार्टमेंट की नौकरी ही ऑनेस्टी है, और क्या है ना। कागज नहीं देते जी हम इसमें से। पढ़ना नहीं पढ़ने देंगे जी, इन्वेस्टिगेशन होना है। थाने में हमेशा रेड बल्ब ऑन होना चाहिए ड्यूटी पे। जहाँ बैठते हो ना आप, वहां पे रेड बल्ब ऑन होना चाहिए हमेशा। रेड ऑन है। हमेशा। सीबीआई वाले तो वैसे ही क्या कहते हैं, चलो बाल की खाल निकालने में इतने माहिर होते हैं ना, तो नहा धो धो के आके सवाल पूछते हैं। ये वाला पूछा तूने, इससे नहीं पूछा? वैसे तो पूछेंगे, और जब पूछताछ शुरू होती है ना तब आता है मजा असली। नहीं नहीं, बग्गू ग्रुप की जांच तो अमेरिका तक है। ज्यादा लोग नहीं है, जमात के 8,000 बंदे हैं इंडिया में। सब वही है, भग्गू ग्रुप की लिस्ट निकाल ले इन्वेस्टर्स की, सब जमात के बंदे हैं। जमात, आईएस, आईएस और कुछ नहीं।
तो मेरे को क्या मतलब है इस बात से? वो मुझे मुझे पहचाने ना पहचाने वो समझेगा। ये देख ले। क्यों? मैं क्यों पढ़ूं? मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता। बग्गू ग्रुप की जांच क्लोज, अब तो अरेस्ट ही अरेस्ट है मेरे पास और भी सबूत है। इतनी सी देर है, कहाँ में उठाना। आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, सजना है मुझे सजना के लिए। मेरी जिंदगी में तू नहीं शायद, मैं तेरी सीबीआई की इंतजार खत्म, नहीं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का इंतजार करता हूँ। पहले तू आईएसआई से की जांच से बाहर तो आ जा, उसके बाद सीआईए के गेट के बाहर खड़ा इंतजार करता हूँ। कैसी गुंडी लुच्ची बीवी मिली है शायद। हर बार इसके गिरफ्तार होने का इंतजार करता हूं। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं, पर तेरे अपराधों से मैं सीधे ही इनकार करता था, और अब भी इनकार करता हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं मैडम बग्गू ग्रुप से। लाख कोशिश कर ली इन्होंने, मंडल को जो है किसी तरह क्राइम में लेके आओ। आ तो गया मैं क्राइम में, पर क्राइम ब्रांच में आया, पूरा शब्द नहीं सुना। कह रहे मंडल को किसी भी तरीके से ना क्राइम में लेके आओ यार। हाँ ले आएंगे। पुलिस वाले कह रहे, पता है, कह रहे पुलिस वालों का दिमाग कहाँ होता है। कह रहा हाँ यार नहीं होता, एक मिनट रुक। मंडल को यार क्राइम में लेके आना है कैसे? दूसरा पता कह रहा बड़ा आसान है, क्या लिख दे। ठीक है, हितेश मंडल इज इन क्राइम। ठीक है, सब खुश हो गए। ब्रांच। देख आ तो गया। नहीं ऐसे नहीं, पीएमओ बहस हो रही है, ऐसे नहीं लाना था, फिर कैसे लाना है? तो कोई क्राइम तो करेगा। नहीं क्राइम क्या मतलब, आपने कहा उसे क्राइम में लेके आना, ले तो आया उसको क्राइम में। अरे क्रिमिनल है वो मैडम, नहीं है ना। आप देखो अब लिख दिया ना यहाँ पे, सरकारी लेटर हेड पे लिख रहे हितेश मंडल इज इन क्राइम ब्रांच एज एन आईजी इंस्पेक्टर जनरल। सब बके ये जैसे ही पता लगे कि कौन है ये, कह रहे हैं पुलिस वाला। नहीं वो तो खैर ठीक, पुलिस वालों को तो हम भी जानते हैं। हाँ तो क्या इंटरपोल में है, इंटरपोल में। तो किसी को नहीं पता होगा तो इंटरपोल क्या होगा, कोई इंटरपोल वैसे ही कोई। दूसरा पता है क्या कह रहा है अबे इसे पता नहीं है, इसके आगे मत बोल। ठीक है ना, थोड़ी आगे जाके कह रहे यार करें क्या, क्यों कह रहे यार पता करते करते सोच तो रहते हैं, लगा तो था कि यार ये विजिलेंस का सर्टिफिकेट दिखा रहा है। फिर कह रहे डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस।
फिर कह रहा थोड़ी और पता लगी तो कह रहे पुलिस में आ गया है, कांस्टेबल वगैरह होगा, हेड कांस्टेबल होगा। नहीं यार है। फिर एडिशनल सीपी क्राइम से ज्वाइनिंग ली है इसने। उसने सिफारिश लगाई थी इसकी। अबे नहीं, एडिशनल सीपी क्राइम है। कौन, ये जो है? हाँ यही, ये ट्विटर हैंडल वाला जो है, हाँ ये वही। मुझे ट्वीट तो बड़े अजीब करता है, तभी तो शक हो रहा था मैं, इतना उल्टा सीधा लिखता रहता फिर भी यार इसे कोई कुछ नहीं कहता। जब करना क्या कहता, आईजी तक आ गया ये। या, या, देखो मरियम, आई लव यू सो मच बट प्लीज कीप इन टच। अब मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, इन्वेस्टिगेशन है, फाइल है, ड्यूटी इज ड्यूटी। कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे आपस की बात है। सीबीआई वालों की आपस की बात है, लिख ले भाई एफ आई आर रजिस्टर्ड कर दे कर। नए नए एडिशनल एफ आई आर लगेगी उसमें, बग्गू ग्रुप वाले में टेररिस्ट लिंक लगेगा। नहीं नहीं, इकोनॉमिकल से उसमें आएगा, एनएसए लग गई ना, एक और एफ आई आर लगा उसमें। हाँ, एक और एफ आई आर जो लगेगी और टेररिस्ट लिंक। हाँ, कॉपी वहाँ पे दे, अर्जेंट जाएगी कॉपी, समझ में आई। और एनएसजी को भेज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेज। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल से जैसे मैंने बताया ना वैसे मेंशन करते। इट्स डायरेक्टली, इट्स लिंक्ड विद yeah with a terrorist organization, and foolproof evidence, with foolproof evidence, the following international banned organization: Islamic State of Iraq and Syria, Islamic State, IS लिखेगा ना, IS लिख के ब्रैकेट में इस्लामिक स्टेट ओब्लिक इराक एंड सीरिया। IS कुछ भी हो सकता है, इराक या सीरिया है, इसका बड़ा तगड़ा मेथड है, बैठेंगे कभी तब लिखेंगे। ब्रैकेट बंद, जमातुद्दावा एंड जुदास ग्रुप है ये जूइशों का, एंड द खालिस्तानी ग्रुप। और इन्वॉल्व ग्रुप के बाद ग्रुप बिहेवियर terrorism we found darkly involved in plotting the conspiracy against our, लिखेगा our, हाँ नहीं, जांच अपने ऊपर लेनी होती है, our nation इन्वर्टेड कोमा डबल कोट यूनियन ऑफ इंडिया डबल कोट बंद। अब सारे सरकारी ऑफिसों में सफेदी हो जाएगी, डबल कोट। एक एफ आई आर के खर्चे पे डबल कोट मिल गया ना यूनियन ऑफ इंडिया को, करते कि सफेदी अफेदी क्या दिक्कत। ठीक है ना, बस नहीं नहीं, बाकी कुछ मत जोड़ियो, लगा करके ना कॉपी। हाँ, और उसके जो पेपर ऐड किया एनेक्चर में लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दे दियो। अपना काम पूरा करते रहे ना, उससे क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट में दे दे। हाँ, लोटस ग्रुप की एक अलग एफ आई आर रजिस्टर्ड हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, वो तो फाइल देखने के बाद पता लगेगा। इन्होंने इन्होंने पता है क्या सोचा था, मैं यार बड़े दिन से बैठा बैठा सोच रहा, मैंने कहा बहन की चूत इसकी बहन का लड़ू कौन है यार, ये भग्गू ग्रुप थी माँ का भोसड़ा बहन का लंड साला, क्या कहते हैं उधर, अरे वो
राजस्थान में जो है पुष्कर में जमीन, यहाँ काशी विश्वनाथ और श्री राम मंदिर के वहां में उन्हें बहन के लड्डू को है कौन ही इनकी माँ की चूत हमारी बहन के लड्डू की। सोचते 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 मैं जो कोई इनपुट नहीं। फिर मैं कहा बहन की मेरी माँ की चूत, मैंने कहा रुक यार, मैंने ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर जब लिंक निकला ना, मैंने अरे इसकी माँ का भोसड़ा मारा, ये फिर पिटेंगे। नहीं वो फुल नेटवर्क मारेंगे, मैं करूँ इनकी माँ की चूत सालों की। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट में साफ किया था जी ये इन्वेस्टिगेशन फाइल है, ये इस वजह से किया गया, ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये है। अब हमारे को चाहिए सिर्फ क्या कहते हैं अरेस्ट के ऑर्डर, तो गोली मार देंगे अब, बात खत्म। पैसा किसी का वापस नहीं जाएगा, सब जमातुद्दावा के बंदे हैं और ISIS के A to Z, एक बाहर का नहीं है। जमात अपने से बाहर काम करता ही नहीं है। अब केजरीवाल की गर्दन रगड़ में आएगी, शायद ये वही पैसा है खालिस्तानियों ने जो केजरीवाल के थ्रू जमीन खरीदने का बेचा था, के लिए भेजा, ये वहां खपाया गया पैसा। जांच चालू रहेगी भाई साहब।